If you plan to come into Canada after 1st September 2024, तो ये वीडियो आपके लिए है. If you plan to coming to Canada on the spouse visa, open work permit, तो ये वीडियो आपके लिए है. अगर आपने अपने एडमिशन फ़ीस पे कर दी है, आपको ऑफर लेटर मिल गया, आपने फ़ीसें पे कर दी है और आपका सितंबर इनटेक है, 2025 में जनवरी इनटेक में आने वाले हो, या अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा या अंडर ग्रेजुएट आपने कोर्स लिया हुआ है, डजंट मैटर किसी भी प्रोविंस में, या आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है. आपको पता चल जाएगा कि आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कैनेडा नाउ और नॉट. जो अगर आप इतना इन्वेस्ट करोगे, लोन लेके अपनी सेविंग तोड़ के, आपको इसका रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको पीआर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा. तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना. सो आई वुड टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. 3 मेजर डिसीजंस लिए हैं इमिग्रेशन मिनिस्टर ने, मार्क मिलर ने. पहले आपको मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करूँगा पॉइंट टू पॉइंट कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है. Top destination for foreign students. There's affordable education, a high quality of life, low cost of living, and multiple job options. In 2023, there were over 1 million international students in Canada. But this year, the country has a different plan. It's capping the issue of student visas, almost by 35%. How will it work? The visa cap is a temporary one. It will last for 2 years. Canada can issue 364,000 student visas in 2024. Each province will be allocated a portion of that. This will be decided by 2 factors: the population of the area and the current student intake. Provinces will then decide how to divide them among colleges and universities. So, what are the other new rules? Canada will also set a limit on postgraduate work permits. Earlier, it was easy to get them, which is why many students preferred Canada. It was a simple path to permanent residency. But now, Canada is capping issuing of work permits. It's to encourage students to return to their home countries. So who will be eligible for these permits? People pursuing master's or postdoctorate programs can get them, but it will now only be for 3 years. Also, spouses of international students are no longer eligible. So why is the government cracking down now? Like I said, Canada is a popular destination for students, but that's led to a housing crisis. More students means a shortage in apartments, and that has pushed up the rents. They have risen by 22% in the last 2 years. Home prices too are almost unaffordable. They are at an average of $550,000. So, rented apartments are hard to find. Housing prices have skyrocketed, and all of this is impacting Prime Minister Justin Trudeau's popularity. Canada is going to polls in 2025, which explains the cap that's happening right now. But how will this impact Canada's economy? Canada has always had an open immigration policy. It's to fill up job vacancies and replace the aging workforce. Every year, international students contribute $16.4 billion to the economy. Canadian banks benefit from the influx of new students. That's because each student is required to have a GIC, or Guaranteed Investment Certificate. This is an amount of more than 20,000 Canadian dollars. It's to cover their living expenses. Plus, it would impact the businesses, especially the restaurants and retail sector. Students make up for 4.6% of the 1.1 million workers in the food industry. Many businesses have already warned about shortages. Now, how will this impact Indians? Indians make up for 37% of all foreign students in Canada. Around 320,000 Indians already live here on student visas. A cap will obviously impact intake. Getting a visa will be much harder now. Many Indian students will lose out on opportunities. तो यार कैपिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन भी लगा दी है, और सिर्फ इस साल 2024 में सिर्फ 3,60,000 स्टूडेंट्स को ही स्टडी परमिट मिलेगा, जो एज़ कम्पेयर टू 2023 से 35% लोअर है. सो सेकंड चीज़, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके कई सारे रीजंस हैं. हाउसिंग क्राइसिस है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है इलेक्शन. 2025 में कनाडा में इलेक्शन है, और कैनेडियन गवर्नमेंट को पता है कि यहाँ के जो कॉमन सिटीजन्स हैं वो खुश नहीं है कनाडा की गवर्नमेंट की पॉलिसी से. उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसके रिगार्डिंग में कभी फिर बात करूँगा. बट 70 to 80% सिटीजन्स जो कनाडा में रहते हैं, डजेंट मैटर किसी भी प्रोविंस में हो, वो खुश नहीं है बिकॉज ऑफ कार्बन टैक्स, बिकॉज ऑफ टैक्स ऑन इनकम, बिकॉज ऑफ MRP, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ हाई रेंट, एंड प्रॉपर्टी यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, 3 to 4 times एक्सपेंसिव है. अभी कनाडा के अंदर ना मोर देन 1 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी परमिट पे हैं.
और कुछ प्रोविंस तो ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे स्टडी परमिट पे, लाइक ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर ही पड़ने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ इधर ही है, और जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और सेमी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वो भी ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ही आते हैं। और 70 to 60% बच्चे जो स्टडी परमिट पे आते हैं वो ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया इन दोनों प्रोविंस के अंदर ही आते हैं। और 50% इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर ओंटारियो के अंदर और ब्रिटिश कोलंबिया में ही पड़ेगा। अब बात आती है कि किन किन स्टूडेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा। जो स्टूडेंट्स मास्टर डिग्री, डॉक्टरल डिग्री, एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी स्कूल या कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक लॉ या मेडिसिन में एडमिशन लेते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपको मैंने पहले भी कहा है मैंने, प्राइवेट कॉलेज में कभी भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए। और प्राइवेट कॉलेज आपको मैक्सिमम ब्रिटिश कोलंबिया, ओंटारियो प्रोविंस में ही मिलते हैं। और इवन ओंटारियो प्रोविंस के अंदर कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, आपको वहाँ पे PGWP मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको नहीं मिलता वहाँ पे। प्राइवेट कॉलेज को इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है, इसलिए वहाँ पे कैपिंग करवाई गई है। द रीज़न इज़ डैट क्योंकि वहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो सिर्फ एक बिल्डिंग के 2-2, 3-3, 4-4 रूम के ही होते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और दिस इज़ द ईजिएस्ट वे टू कम इनटू द कनाडा। और ये हर किसी को पता है, IRCC को भी पता है, कैनेडियन गवर्नमेंट को भी पता है, एजेंट्स को भी पता है और आपको भी पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IELTS में स्कोर नहीं बनता, PTE में स्कोर नहीं बनता, TOEFL में स्कोर नहीं बनता, तो वो कोशिश करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो और एक बार कनाडा के अंदर आ जाओ। उसके बाद देखा जाएगा कि हमें क्या करना है, हमें किस प्रोविंस में जाना है और किस यूनिवर्सिटी में मूव होना है। वो कहते हैं ना 1+1 वाला हिसाब होता है, 1+1 करेंगे और कुछ 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल जाएगा। तो ये तरीका है, तो इसलिए वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाली गई है कैनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू। एज पर द गवर्नमेंट देयर वुड बी नो वर्क परमिट, नो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अगर आप सितंबर 1, 2024 के बाद आते हो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो। अगर आपने मई इनटेक, जनवरी इनटेक या उसे सितंबर 1, 2024 से पहले आपने किसी प्राइवेट कॉलेज में लिया हुआ एडमिशन, तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है अगर वो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं उस कोर्स के साथ साथ। लेकिन 1 सितंबर 2024 के बाद आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा इफ़ यू टेक एडमिशन ऑन द प्राइवेट कॉलेज। इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जो बच्चे मास्टर डिग्री का कोर्स लेते हैं, जो मास्टर डिग्री में एनरोल करते हैं, अगर उनकी स्टडी 16 मंथ्स की है तो उनको जो वर्क परमिट मिलता है वो 16 मंथ्स का ही मिलता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर उन्होंने क्लियर किया है, अगर आपकी स्टडी 16 मंथ्स की है तो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो 3 इयर्स का मिलेगा, 16 मंथ्स का नहीं मिलेगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो स्पाउस वीज़ा, नो ओपन वर्क परमिट। अगर आपने अभी फाइल लगा रखी है तो डोंट वरी, आपकी फाइल अप्रूव हो जाएगी, बट अभी कोई डेट क्लैरिफाई नहीं हुई है। वंस द डेट क्लैरिफाई तो IRCC अपडेट कर देगी, तो उस तारीख के बाद आपको स्पाउस वीज़ा नहीं मिलेगा। और स्पाउस वीज़ा को तभी मिल पाएगा अगर आप एनरोल करते हो मास्टर डिग्री के अंदर, डॉक्टर डिग्री, प्रोफेशनल कोर्स लाइक लॉ एंड मेडिसिन। एंड आई वुड एडवाइस यू ऐसे ही कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज़ करना जो पब्लिक फंडेड हो, किसी भी प्राइवेट या सेमी पब्लिक प्राइवेट को चूज़ मत करना, क्योंकि आपको ना ही वर्क परमिट मिलेगा ना ही अपने आप स्पाउस वीज़ा को बुला सकते हो। सो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। ओके, माइंड क्वेश्चन होता है कि इज इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा राइट नाउ और नॉट, क्योंकि अगर हम डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो हमें PGW वर्क परमिट हमें नहीं मिलने वाला, तो फ़ायदा नहीं है इतनी इन्वेस्टमेंट करें, लोन लिए, पैसा लगाए और स्टडी पे। देखो हर किसी को पता है स्टडी करना एक बहाना है, असली मकसद PR पाना है। और अगर वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे, ना PNP में फाइल लगा सकते हो, ना ही फेडरल फाइल लगा सकते हो। और स्टडी करना, अगर स्टडी ही करनी है तो कनाडा से बेटर है कि आप इंडिया में स्टडी करो, UK में स्टडी करो, दुबई में स्टडी करो। वहाँ की स्टडी भी चीप है और क्वालिटी भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू कनाडा और इक्वल टू कनाडा। क्योंकि कनाडा में 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज़ ही है जो अच्छी है, बाकी ओवरऑल सब। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, यू आर अ कैश काउ। आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेज के लिए आप कैश काउ हो, क्योंकि आप 3 to 4 टाइम्स पे करते हो, 4 टाइम्स पे करते हो एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट्स, कैनेडियन सिटीजन जो PR होल्डर है। एंड एवरीबडी नो, IRCC नो, कैनेडियन गवर्नमेंट नो, एंड दिस इज वन ऑफ द रीज़न उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वैसा कैंपस चीज़ें नहीं मिलती है और इतना पे कर रहे हो। तो दिस इज वन ऑफ द रीज़न रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए। एंड इन्फ्लेशन है, एकोमोडेशन नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, और कैनेडियन सिटीजन्स को भी खुश करना है बिकॉज ऑफ अपकमिंग इलेक्शन 2025 में। सो दे हैव टू डू सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सम काइंड ऑफ कैपिंग। और कनाडा में इतना मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस इंडस्ट्रीज नहीं है, तो जॉब कैसे मिलेगी। तो यार अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, यार अगर हम स्टडी परमिट में नहीं आ पा रहे, हमें तब भी कनाडा आना है, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, वो है LMIA, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। दिस इज़ द ऑल्टरनेटिव एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू कम टू कनाडा। अगर कनाडा ही आना चाहते हो, लेकिन LMIA आप तब लो
अगर आपके पास इंडिया में या अपनी होम कंट्री है जहाँ से भी देख रहे हो, आपके पास ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पॉइंट्स बनेंगे प्रोविंशियल लेवल पे, पीएनपी में और फेडरल लेवल पे। अदरवाइज अगर आप आफ्टर 12th के बाद आते हो, ना ही आपके पास स्किल्स है, ना ही आपके पॉइंट्स बन पाएंगे। इवन इफ़ यू गॉट अ LMIA, आपको PR नहीं मिल पाएगा, आपके PR में पॉइंट्स नहीं बनेंगे। तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो अगर आपको कनाडा आना ही है तो ग्रेजुएशन करके आओ, मास्टर्स करके आओ, मिनिमम 2 साल का, 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ और ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे PR मिलना ईजी है। Before ending this video, if you have any question, anything you want to ask, just comment in the comment section. And if you need a mini session 1-to-1, you can DM me on the Instagram. तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर करना। हैव अ गुड डे।